students, my name is Pradeep Patil and today we'll continue with our remaining chapter. This is the third video of your second chapter. Okay, I have already made two videos and so let us continue with our remaining chapter. We have been completed till here, so now we'll continue further. Please hold your phone in horizontal position because I have opened the PDF in landscape mode. So let us read. Choosing a place to live in. Look at map 2 below. All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. So listen students, here one map is shown. Okay, if you see here map to here something is written map to some important archaeological sites. So what does mean site? Site means the places where archaeologists found some evidences from the past. The places where archaeologists found the evidences evidences of hunter gatherers. सो आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स मतलब क्या, ऐसे जो प्लेसेस रहते हैं कि उस प्लेसेस से आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ हिस्ट्री से कुछ एविडेंसेस मिले. अभी वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हंटर गैदरर्स अर्लीस्ट पीपल. ओके, सो ये मैप में ऐसे प्लेसेस दिखाए हैं, ऐसे प्लेसेस शो किए हैं कि उन प्लेसेस से आर्कियोलॉजिस्ट को हिस्ट्री में से हंटर गैदरर्स के एविडेंसेस मिले थे. ओके, archaeologists found some evidences, or we can call it as a sources as well. So evidence, so archaeologists found some evidences from all these places. So those places are called sites. So let us discuss which sites are shown in this map. Okay, so here what they have said, the places which are marked with red triangles are the sites from which archaeologists have found evidences of hunter-gatherers. So let us see which are the places are marked with the red triangles. So see students, here one place is shown, Bhimbetka. Okay, after that below you will find some more places. Wait, see here one more place is there, Hunsgi. Okay, after that Karnal caves. So these are the places which are marked with red triangle. So ये जो places है, इधर आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर गैदरर्स के कुछ प्रूफ मिले थे, कुछ एविडेंसेस मिले थे. मतलब कुछ स्टोल मिले होंगे आर्कियोलॉजिस्ट को. ओके, आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि हाउ हंटर गैदरर्स वुड लिव, हंटर गैदरर्स कैसे रहते थे, स्टोन स्टूल यूज़ करते थे वो लोग. ऐसे सब उनको ये जो जगह है, ये जो प्लेसेस है, दोज आर कॉल्ड साइट्स. इधर आर्कियोलॉजिस्ट को उनके एविडेंसेस मिले. ओके, सो स्टूडेंट्स जस्ट रिमेंबर, ये जो प्लेसेस है भीमटेका, हुंसगी और कर्नूल केव्स, you have to just remember where all these places are located in map of the India map. Okay, कहाँ पे वो जो प्लेसेस है लोकेटेड, वो आपको अच्छी तरह से मैप देख लेना चाहिए, क्योंकि इन योर प्री-मिड एग्ज़ाम you will get one map from your text, your syllabus, from history book. So you may get question that show the Bhimteka, Hunsgi and Karnal caves in the map of India. So you must know where those places are located. Okay, so these are the just few places. They have shown only few places. There are more sites. There are even more sites are sites of the gatherers archaeologists found. Okay, hunter gatherers lived in many more places. Only some are shown on the map. So here it is said, even hunter gatherers lived at many places. Only some of these shown
on the map. So students, these are the places where archaeologists lived. Where did they live? They lived at Bhimbetka, okay, uh, Bhimbetka, sorry, Hunsgi and Karnul caves. These are the places where earliest people, that is, we call them hunter gatherers. They lived at these places. Many sites were located near sources of water, such as rivers and lakes. Okay, there were many other sites also. Those were located at nearby rivers or lakes. Okay, so students, now let us discuss next passage. At, as stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. Places where stone was found and where people made tools are known as factory sites. So listen students, what is said here. Um, Stone tools were very important that time. Hunter gatherers would use stone tools. In our last video, we have discussed it in very details. We have discussed it in very detail. We have seen that um, uh, for what hunter gatherers would use the stone tools. Okay, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हंटर गैदरर स्टोन टूल किस लिए यूज़ करते थे, स्टोन टूल्स उनके लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट थे. ओके, सो स्टोन्स टूल्स उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था. तो इसलिए व्हाट हैपन, पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन टूल्स वाज अवेलेबल. ओके, सो इसलिए वो हंटर गैदरर्स क्या करते थे, ऐसे प्लेसेस ढूंढते थे कि जहाँ पे बहुत अच्छा क्वालिटी का स्टोन अवेलेबल होगा. ओके, क्योंकि सो दैट दे कैन मेक टूल्स फ्रॉम दैट स्टोन. ओके, सो वो क्या करते थे, वो ऐसा अच्छा क्वालिटी स्टोन कहाँ पे मिलेगा ऐसी जगह बहुत ढूंढते थे. Places where stone was found and where people made tools are known as factory sites. Okay, so ऐसे जो places है उधर अच्छा क्वालिटी का स्टोन उनको मिला और जिधर वो टूल्स बनाते थे उन जगह को क्या बोलते थे, फैक्ट्री साइट्स. ओके, वेयर places where stone was found and people would make tools, those places are known as factory sites. Okay, now let us discuss further. How do we know where these factories were? Okay, अभी हम लोगों को कैसे पता है कि where these factories were? Okay, कि ये फैक्ट्री किधर थे, कौन सी जगह पे थे? How do we know this? So usually we find blocks of stone, tools that were made and perhaps discarded because they were not perfect, and chips of waste stone left behind at these sites. ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी इधर एक क्वेश्चन पूछा है हम लोगों को कि हाउ डू वी नो वेयर दिस फैक्ट्रीज वेयर्स. ओके, स्टोन टूल बनाने के फैक्ट्रीज किधर है, वो हम लोगों को कैसे पता, आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला. तो आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला, डू यू नो, बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन. मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी जगह मिली कि वो जगह पे उनको क्या मिला, ब्लॉक्स ऑफ स्टोन के छोटे छोटे ब्लॉक्स मिले. टूल्स दैट वेर मेड एंड परहैप्स डिस्कार्डेड बिकॉज दे वेर नॉट परफेक्ट. इवन आर्कियोलॉजिस्ट को वेट अ सेकंड. सो स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन, उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला पता है, टूल्स दैट वेर मेड एंड परहैप्स डिस्कार्डेड बिकॉज दे वेर नॉट परफेक्ट. मतलब रिजेक्टेड टूल्स, जो उन लोगों ने, हंटर गैदरर्स ने कुछ टूल बनाए थे लेकिन वो कुछ परफेक्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया. मतलब क्या, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड. दे थ्रू दोज रिजेक्टेड टूल्स एट दैट साइट ओनली. ओके, जो ख़राब थे, जो अच्छे टूल्स बने नहीं थे, वो टूल्स उन्होंने रिजेक्ट करके उधर ही फेंके थे. तो दैट इज़ वाई आर्कियोलॉजिस्ट को रिजेक्ट हुए डिस्कार्ड हुए नॉट परफेक्ट टूल उनको मिले थे. ओके, एंड चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन लेफ्ट बिहाइंड एट दिस साइड्स. ओके, और उनको क्या एविडेंस मिले थे, किसको,
आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला था पता है? आर्कियोलॉजिस्ट इवन फाउंड चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन, ओके, लेफ्ट बिहाइंड एट दिस साइड्स। वो जो साइड्स थे, फैक्ट्री साइड्स, उधर क्या मिला था उनको, आर्कियोलॉजिस्ट को? जो स्टोन टूल्स जो रहते उनके चिप्स, मतलब ये जो हंटर गैदरर्स थे उन्होंने कुछ टूल बनाए थे स्टोन के। जो स्टोन टूल बनाते बनाते जो उसका चिप्स रहता है, मतलब जो वेस्टेड मटेरियल रहता है चिप्स, वो उधर पड़े थे, बहुत सारे चिप्स पड़े हुए मिले थे किनको, आर्कियोलॉजिस्ट को। दैट इज़ वाई दे अंडरस्टूड दैट, आर्कियोलॉजिस्ट अंडरस्टूड दैट दीज आर द प्लेसेस वेयर hunter gatherers would make tool, and these are the factories. Okay, so now have you understood that how archaeologists found factories? Sometimes people lived here for longer spells of time. These sites are called habitation cum factory sites. So listen students, what is mean by habitation cum factory sites? So if you get question, then how will you answer? So habitation factory cum sites means some sites, sometimes here it is given, sometimes people lived here for longer spells of time. These sites are called habitation cum factory sites. मतलब क्या, जिधर ये हंटर गैदरर्स वो जो फैक्ट्रीज पे स्टोन टूल्स बनाते थे, ओके, वो जिधर बनाते थे उधर ही ये लोग हंटर गैदरर्स रहने को उधर ही रहते थे। बहुत लॉन्गर स्पेल ऑफ टाइम, मतलब बहुत सारे पीरियड, मतलब मे बी 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, क्योंकि वो उधर ही टूल्स बनाते थे और उधर ही रहने के लिए उधर ही रहते थे फॉर लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड। सो वो जो फैक्ट्रीज है उधर ये जो हंटर गैदरर्स रहते थे, सो वो जो एरिया है वो जो रहते थे और जिधर उनका फैक्ट्रीज है उसको क्या बोलते थे, दिस साइट्स, वो साइट्स को क्या बोलते थे, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। दिस साइट्स आर कॉल्ड habitation cum factory sites. Okay, now let us discuss further. Okay, here some image of stone is shown, images of stone. Okay, now let us discuss this highlighted part, that is sites. Okay, so let us see what is meant by sites, what is given here. Sites are places where the remains of things, tools, pots, building, etc. were found. These were made, used and left behind by people. These may be found on the surface of the earth, buried under the earth, or sometimes even under water. We will learn more about the different sites in later chapters. So listen students, here it is said that what is meant by sites. Here it is said that sites means such places where remains of things, मतलब साइट्स ऐसे प्लेसेस है कि जिधर कुछ चीज़ों के बचे हुए थिंग्स, कुछ बचे हुए चीज़ें पड़ी हुई है, किसके, हंटर गैदरर्स के। फॉर एग्जांपल्स, जो हंटर गैदरर्स जो टूल्स यूज करते थे, स्टोन टूल्स, वो स्टोन टूल्स मिले। कुछ वो जो पॉट्स यूज़ करते थे वो पॉट्स मिले। बिल्डिंग्स के कुछ स्ट्रक्चर्स मिले। ओके, सो ये जैसे जिन जगहों पे है जो थिंग्स मिले हंटर गैदरर्स के, दोज प्लेसेस आर कॉल्ड साइट्स। ओके, दिस वेर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल, मतलब ऐसे जो थिंग्स थे जो हंटर गैदरर्स ने यूज़ किए थे, बनाए थे, यूज़ किए थे, और वो उधर ही पड़े थे। ओके, उधर ही छोड़ दिए थे उन्होंने। वो जो प्लेसेस पे वो ये सब एविडेंसेस मिले उनको क्या बोलते हैं, साइट्स। दिस मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये जो सब चीज़ें किधर किधर मिले थे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे, अर्थ पे मतलब लैंड पे, ज़मीन पे पड़े हुए मिले कुछ प्लेसेस पे। ओके, नहीं तो कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे मिले, बरीड अंडर द अर्थ, मतलब अर्थ के सरफेस के अंदर, मतलब क्या हुआ था,
अंदर बहुत ज़मीन के अंदर वो थिंग्स मिले, उस पर बहुत बार मिट्टी पड़ पड़ के वो अंदर बरीड हो जाते थे मिट्टी के अंदर. ओके, सो archaeologists found it under the surface of the earth. Okay, so you will learn about these different sites in later chapters. Even in some other chapters, some next few chapters, you are going to read about this. Okay, so students, now it's very important topic we are going to discuss, that is making stone tools. अभी हम इधर पे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टोन टूल्स कैसे बनाते हैं लोग. ओके, स्टोन टूल्स बनाने के कौन से मेथड थे, कौन से मेथड से है लोग स्टोन के टूल्स बनाते थे. ओके, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक. स्टोन टूल्स वेर probably made using two different techniques. सो स्टोन टूल बनाने के दो डिफरेंट टेक्निक्स थे. डिफरेंट मतलब अलग अलग दो टेक्निक्स थे. दो टेक्निक्स से हंटर गैदरर्स टूल बनाते थे. ओके, सो लेट अस डिस्कस. सो पहला जो टेक्निक है उनको उसको क्या बोलते हैं, लिसन. द फर्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन. ओके, so remember the first method of making stone tool was stone on stone. Okay, that is the first method. What first technique was, what? Stone on stone. Stone on stone मतलब इसका आपको if you just read it carefully you will understand. Stone on stone मतलब क्या, स्टोन पे स्टोन, एक पत्थर पे दूसरा पत्थर, ऐसा इसका मीनिंग होता है. दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वॉज दिस मेथड, ये टेक्निक कैसा था, दैट विल डिस्कस. बट फॉर नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट मेथड वॉज स्टोन ऑन स्टोन and second method was pressure flaking. Okay, what was the second method? Pressure flaking. These were the two techniques of the making stone tools. So let us discuss first method, that is the stone on stone. Here in this technique, the pebble from which the tool was to be made, also called the core, was held in one hand. So listen, try to understand this method. These are very important method. So पहली जो मेथड है स्टोन ऑन स्टोन, ये जो टेक्निक है उसमें कैसे स्टोन टूल बनाते थे. द पेबल, ओके, पेबल फ्रॉम विच द टूल वॉज मेड, मतलब एक हाथ में जो हंटर गैदर है एक हाथ में एक पेबल ले देते. पेबल मतलब डू यू नो, पेबल मतलब जो ऐसा पत्थर रहता है, पत्थर नहीं बोल सकते उसको. हैव यू एवर सीन द स्टोन ऐसा, वेट. So students, do you know what is meant by pebble? Pebble means a small stone made smooth and round by the action of water or sand. That is called pebble. मतलब क्या, ऐसे छोटे पत्थर रहते वो बहुत स्मूथ रहते, स्मूथ एकदम स्मूथ एंड राउंड. द स्टोन विच इज़ वेरी स्मूथ एंड राउंड, ओके, विच इज़ कॉल्ड पेबल. वो स्मूथ और राउंड कैसे बनते थे, ड्यू टू द एक्शन ऑफ वाटर. मतलब ये जो स्टोन जो पेबल्स है वो मोस्टली कहाँ पे रहते हैं, जो अपना जिधर रिवर्स और सी वगैरह रहता है ना, उधर ऐसे छोटे छोटे गोल राउंडेड स्मूथ पत्थर आपको मिलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, पेबल्स. ओके, राउंडेड स्मूथ जो पत्थर रहते हैं उसको पेबल्स बोलते हैं. ओके, सो ये जो हंटर गैदरर थे वो ऐसे गोटे जो ये पेबल्स रहते स्मूथ पत्थर राउंडेड, उनसे ये लोग क्या बनाते थे, स्टोन टूल्स बनाते थे. और ये जो पेबल है उनको और क्या बोलते हैं, कोर, और कोर भी बोलते, CORE, कोर. ओके, अल्सो कॉल्ड द कोर. ओके, सो एक लोग क्या करते थे, एक हाथ में ये लोग एक पेबल पकड़ते थे. ओके, दे वुड मेक पेबल इन वन हैंड. वेट. ओके, सो ये जो लोग थे वो एक हाथ में पेबल पकड़ते थे, उससे उनको टूल बनाने का. ओके, स्टोन टूल, उसको वही पेबल को कोर भी बोलते. ओके, एंड अनदर स्टोन विच वॉज यूज एज अ हैमर वॉज हेल्ड इन अदर हैंड. और दूसरे हाथ में एक ऐसा पत्थर लेते थे बड़ा सा. ओके,
और वो पत्थर से क्या करते थे, अनदर स्टोन विच वॉज यूज एज अ हैमर, वो जो दूसरे हाथ में जो पत्थर लेते थे, वो पत्थर मतलब जो स्टोन लेते थे दूसरे हाथ में, दूसरा पत्थर, हाँ, वो हैमर करके यूज़ करते थे। हैमर, डू यू नो हैमर? हैमर का काम कैसे करते हैं? हैमर से ज़ोर से हिट करते किसी भी थिंग, किसी भी चीज़ को। सो वो जो दूसरे हाथ में एक अलग पत्थर लेते थे, वो हैमर करके यूज़ करते थे उसका। ओके, अनदर स्टोन विच वॉज यूज एज अ हैमर वॉज हेल्ड इन द अदर हैंड। सो एक हाथ में पेबल रहता था और कोर बोलते उसको, वो रहता था, उससे उनको टूल बनाने का, और दूसरे हाथ में एक अलग पत्थर रहता था स्टोन, वो लोग वो हैमर करके यूज़ करते थे। ओके, सो द सेकेंड स्टोन वॉज यूज टू स्ट्राइक ऑफ फ्लेक्स फ्रॉम द फर्स्ट टिल द रिक्वायर्ड शेप वॉज ऑब्टेन्ड। ओके, सो स्ट्राइक ऑफ मतलब क्या, जो हैमर रहता था एक हाथ में, वो हैमर से जोर से एकदम वो जो पेबल रहता है, कोर रहता है, उसको हिट करना, स्ट्राइक ऑफ करना, स्ट्राइक करने का रहता था। ओके, सो ये जो हंटर गैदरर थे, वो एक हाथ में जो हैमर रहता था, एक स्टोन रहता था, उससे कोर को जोर से हिट करते थे। ओके, और हिट करके क्या होता था, ये जो पेबल है उसका जोर से हिट करने की वजह से उसका ऐसा छोटा छोटा मटेरियल निकलता था। ओके, इसको फ्लेक्स बोलते हैं। ओके, इधर बोला स्ट्राइक ऑफ फ्लेक्स मतलब ऐसा छोटा छोटा पीसेस स्टोन का, वो जो कोर है, कोर का, पेबल का पीसेस निकालता था, और उससे उसको शेप मिल जाता था। ओके, शेप दे के फिर वो टूल बन जाता था। अंडरस्टूड? सो स्टोन ऑन स्टोन मेथड, डिड यू गेट इट? how the stone tools were made by how the stone tools were made by using first method, that is stone on stone. Okay, now let us discuss the second method, that is pressure flaking. Now listen, in this method here the core was placed on a firm surface. Okay, सो ये प्रेशर फ्लेकिंग में क्या करते थे, जो कोर है, जो पेबल है, वो एकदम एक फर्म सरफेस, मतलब बहुत ऐसा एकदम पक्का सरफेस, म्हणजे एकदम हार्ड सरफेस. ओके, मे बी फ्लोअरवर किंवा एखादी हार्ड सरफेस जो असतो त्याला फर्म सरफेस म्हणतात. सो दे वुड कीप कोर, जो पेबल है तो एक हार्ड सरफेस पर ठेवायचे थे. ओके, वो लोग कोर जो है उसको एक हार्ड सरफेस पे रखते थे, फर्म सरफेस पे. ओके, the hammer stone was used on a piece of bone or stone that was placed on the core. और उसके बाद क्या करते थे, जो हैमर अलग दूसरे हाथ में जो एक स्टोन रहता था हैमर करके, जैसे हमने फर्स्ट मेथड में वे ऑलरेडी डिस्कस, दूसरे हाथ में जो हैमर स्टोन रहता था बड़ा वाला, वो क्या करते थे, वो स्टोन एक दूसरे छोटे, दूसरा एक मे बी अ पीस ऑफ बोन, एक बोन का पीस. ओके, बोन मतलब हड्डी, हड्डी का पीस, नहीं तो और क्या, और पीस ऑफ एनी स्टोन. सो उस पे वो हैमर रखते थे. मतलब लिसन, पहले एक हार्ड फर्म सरफेस पे वो पेबल रखते थे. ठीक है, पेबल पे एक छोटा सा पेबल के ऊपर, जिससे हमको कोर, पेपर और कोर, जिससे हमको स्टोन टूल बनाना है, वो हार्ड सरफेस पे रखते थे. उसके बाद एक पीस ऑफ बोन और मे बी अ पीस ऑफ अनदर स्टोन. ओके, एक छोटा सा पीस वो पेबल पे रखते थे, और वो छोटे पीस के ऊपर ये हैमर रखते थे, जो दूसरा बड़ा वाला स्टोन है वो उसके ऊपर रखते थे, और फिर उससे वो टूल बनाते थे. सो उसकी वजह से क्या होता था, वो जो नीचे का पेबल है उससे ऐसा फ्लेक्स निकलता था, छोटा छोटा मटेरियल निकलता था, और उसको शेप मिल जाता था, फिर वो टूल बन जाता था. ओके, अंडरस्टूड? सो दिस वर द टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेकिंग स्टोन टूल्स. फर्स्ट वॉज द stone on stone, and second was the pressure flaking. Now let us discuss about fire. Finding about fire. Find the kernel caves on map 2. Already we have seen this place also. Red triangle से उधर show किया है. Okay, kernel caves. So traces of ash have been found here. ये जो कर्नल केव्स थे ना, ये जो प्लेस थे, ये जो साइट, ओके, इस साइट पे क्या मिला था आर्कियोलॉजिस्ट को? दे फाउंड द ट्रेसेस ऑफ ऐश. ऐश मतलब जो कुछ चीज़ें जली हुई रहती है, उसका जो ए रहता है उसको ऐश बोलते हैं. ओके, सो ये कर्नल केव्स पे आर्कियोलॉजिस्ट को ऐश मिला था.
दिस सजेस्ट दैट पीपल वेर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। सो ये ऐश मिलने की वजह से आर्कियोलॉजिस्ट को एक बात पता चली कि ये जो हंटर गैदरर्स थे, इन लोगों को ये फायर से फैमिलियर थे, मतलब इन लोगों को फायर पता था। ओके, ये लोग फायर का यूज़ करते थे। ओके, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट केम टू नो। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मेनी थिंग्स। वो फायर बहुत चीज़ों के लिए ये लोग यूज़ करते थे। किसके लिए? एज ए सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के लिए फायर यूज़ करते थे। टू कुक मीट, मीट कुक करने के लिए, कुकिंग करने के लिए यूज़ करते थे। एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, एनिमल्स को भगाने के लिए, डराने के लिए ऑल्सो ये यूज़ करते थे। ओके, सो ये हो गया हमारा इधर तक a topic we have seen, we have discussed. Okay, now a changing environment. So what we will do, we will discuss this topic in our next video. So we will stop here. If you understand my lecture, then please uh, hit the hit the like button, and do not forget to subscribe my channel, because if you subscribe, then you will get the notification of my videos. Okay, bye, have a great day.